हाउ टू डिसाइड विच कंट्री यू वांट टू गो टू। मैंने पूरा सेग्रीगेट किया बैठ के कि भाई यूएसए में ये है, उसमें ये है, ठीक है। आई टेल यू, इक्वलेंट टू 96,000 इंडियन रुपीज़ टू 1,30,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ। तुम पार्ट टाइम से इतने कमा रहे हो वहाँ पे, हमारा रहने खाने का खर्चा निकल जाता है, बस पढ़ाई वढ़ाई का देना होता है। वो 4-5 साल काम कर लोगे तो तुम अच्छा अमाउंट कमा के इंडिया आ सकते हो वापस। वही तुम इंडिया में 20 साल लगा दोगे कमाने में। नहीं हो रहा तो गो फॉर न्यूजीलैंड, बिकॉज इफ़ यू गेट न्यूजीलैंड का वीज़ा तो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया बिकम्स ईजी, गेटिंग अ पीआर फॉर ऑस्ट्रेलिया बिकम्स ईजी वंस यू आर इन द न्यूजीलैंड। दिस इज़ द एवर लास्टिंग कॉन्टेंट. This is not a masala content I'm making. I'm not making this for the masala. I'm not making this to trend. I'm not making this for the maximum views. That is not my intent. My intent here is to help you guys. My intent here is to help those parents, those Indian parents who are really concerned for their kid getting outside India, right? My intent is to help those students not to take wrong decisions or wrong choices based on impulses or their friends' choices. डोंट डू दैट गाइज। स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट और कंट्री वाइज में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी कितनी कितनी रेटिंग्स हैं, और कल्चर कैसा है, सेफ्टी है कि नहीं है। अरे हाँ, मेरा दोस्त वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया था, मुझे वहीं जाना है। नो गाइज, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। फील्ड है तो उस फील्ड में किस यूनिवर्सिटी के ज़्यादा नाम है, रेपूटेशन किस यूनिवर्सिटी की है। तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है इस इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है, रिव्यूज़ देखो, किसकी बेस्ट प्लेसमेंट होती है, चेक करो। पैसे अर्न किए हैं ना मेहनत से, तो भाई वो वेस्ट नहीं होते, वो थोड़े से सही जगह लगते हैं। यू गेट होम से, यू मिस योर पेरेंट्स, यू मिस योर फैमिली, राइट। जहाँ तुम बचपन से रहे हो, तुमसे वो छोड़ के तुम जा रहे हो किसी नए देश जहाँ तुम किसी को नहीं जानते, तो इट्स अ होल शिफ्ट, राइट। मेरे किसी ने अगर घर छोड़ा है ना तो आसान प्रोसेस नहीं होता वो, क्योंकि मैंने जब छोड़ा था तो मैं रोया था। नॉट बीइंग, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं तुमसे, मैं रोया था। इफ़ यू मिस योर पेरेंट्स and if you want to come back to India to meet your parents, if your parents want to come to you there, meet you. Hey guys, thank you so much for staying connected with me to this platform, and we will discuss a lot of things today. So first of all, thank you for being my viewer and staying with me through the platform. And this today we'll refer to a lot of things, but the main topic would be the visa, the study visa, especially for the students who have just passed the 12th, or if they're planning to do the undergraduate courses, their graduation from outside India. So I have prepared some material for you guys. It's regarding the visas. Which we'll cover the process for the visa. We will cover the step-wise process. This is from the perspective of Indian parents and the students as well. In the video, I'll show you the various steps involved during the visa requirements. What type of visa and what is the process to clear the visa interview? Like what all is asked in the process for the visa interview, and also about the countries. So I understand that there's a lot of confusion to decide which country to send your child to, or which country, you know, should a child choose to pursue the graduation from, since there's a lot of options these days. So I have prepared that as well for you guys, just to make things easier for you, wherein I'll share the factors with you in which you can decide or just check list all those factors, and which will help you decide which country is good for your child, or which country is good to pursue the graduation from. So just make sure to stay connected through the video, and I'll show you all these steps, including the steps do you decide the country. I'll show you the country wise details as well, like which university is good, which universities are good in that specific country, and also if you're referring for the part-time work, if students want to work over there, what is the early wage, what is the hourly wage for the students, country wise, the average hourly wage, so that they can cover all the living expenses or the tuition fee. So I'll cover all of these things. Also, I'm planning to make one more video for IELTS, IELTS as well. So just stay connected.
I'll share you the videos. Maybe I'll make one more video if required after this. And yeah, it will be a good time. Perfect. So great. Let's continue the video now, guys. So let's begin with the first part of the video, which is regarding the generic steps involved in the visa. So it's basically only about the student visa I'm referring to right now. I'll make some videos about the post-graduation visa as well. I mean the master's visa for the masters as well. One more video after this. And this video is only for the student visa. All right. So let's begin with generic steps. So before I begin, whenever I look down, I look left or right. Just you guys should know that I'm just referring to my notes. These are my notes that I prepared. So regarding so I have just segregated the steps for you, like a step-wise process, which makes it easier for you to apply for the visa or to know all the factors involved before applying for a specific country for the education. So first of all, you should be choosing the destination, like where exactly you want to go or your kid wants to go, and also the institution as well. So just decide which country or the university you guys want to send your kid to. I'll make it from the perspective of students, so just make sure to decide where you want to go, the institution. This is just the steps, guys. I'll share you the details for the university. जो भी university का नाम होगा, ratings क्या है उसकी, वो मैं सब तुम्हें बताऊंगा आगे, ठीक है? So second step would be to get the admission, which is so first what happens is you get an acceptance letter. Acceptance letter तुम्हें लेना पड़ेगा पहले from the university. तुम apply करोगे, वहाँ से तुम्हें acceptance letter आता है. जब तक वो नहीं आता, guys, do not go. If anyone allows you, if any visa officer allows you, do not go before that, because I've seen people going without the acceptance letter or they're struggling there after that. Okay, so wait for the acceptance letter or the admission offer from the recognized educational institution in that country. You check the visa requirements. That's a step 3, which is you visit the official immigrations, the office for that specific country or the embassy or the website. Visit the embassy if you need some information from them, but generally people visit the embassy website first of the specific country for specific visa requirements. Okay. All right. So the next step would be a very important step, guys, which is to prepare the documents. So I've made all the points for the documents so that you don't miss out of कोई document miss ना हो तुमसे. तो पहला डॉक्यूमेंट इज़ द वैलिड पासपोर्ट. तुम्हारे पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. इस चेक द एक्सपायरी डेट उससे पहले कि है कि नहीं. अगर एक्सपायर हो रहा है, जैसे मेरा हो गया था, तो अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ द वीज़ा फॉर द पासपोर्ट, सॉरी, ठीक है. एडमिशन लेटर का डॉक्यूमेंट चाहिए तुम्हें, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए. बहुत कंट्रीज चेक करती हैं तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट्स, बैलेंस कितना है तुम्हारे पास, फाइनेंशियली तुम कितने स्टेबल हो. स्कॉलरशिप लेटर्स अगर हैं तो वो भी रखो. देन इज़ योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, गाइज, साथ में 10-12 फ़ोटो तो रखो अपने पास. देन योर कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो तुम फॉर्म भरते हो वीज़ा एप्लीकेशन का ऑनलाइन, तो वो पूरा कंप्लीट फॉर्म तुम्हारे पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ठीक है. फिर आता है तुम्हारा प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, विच इज़ दी आइल्स जो तुम देते हो, या फिर TOEFL भी है. इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो. डोंट वरी गाइस कि वो क्या होता है, कैसे होता है, हाउ डू यू क्लियर इट एंड व्हाट आर द ट्रेनिंग्स यू हैव टू गो थ्रू. तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं सारे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है, इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर द आइल्स. मेडिकल चेकअप रिपोर्ट्स, समटाइम्स इट्स रिक्वायर्ड इन सम कंट्रीज़ कि तुम पहले ही करवा लो, ठीक है. एंड द PCC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, PCC. तो तुम्हें ये लेना पड़ेगा अपने लोकल पुलिस स्टेशन से. ये भी रिक्वायरमेंट होती है कई कंट्रीज़ में. ओके, सो दीज आर द मेन फर्स्ट 4 स्टेप्स जो तुम्हें करने हैं डॉक्यूमेंटेशन तक ख़त्म तुम्हारा प्रोसेस, ठीक है. उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है भाई वीज़ा फॉर दी अप्लाई फॉर द वीज़ा. तुम अप्लाई कैसे करोगे वीज़ा के लिए, राइट.
सो यू अप्लाई ऑनलाइन और अप्लाई द एम्बेसी, ठीक है, और द कंसुलेट ऑफ द कंट्री। तुम अप्लाई करोगे, तुम वीज़ा की फ़ीस भरोगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस होती है वीज़ा की गाइस। कई कंट्रीज़ नहीं लेती हैं पहले, बट मोस्टली कंट्रीज़ लेती हैं, तो इट वेरीज़ कंट्री बाय कंट्री। तुम उसके बाद क्या करते हो, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है तुम्हारा, यू हैव टू वेट फॉर द प्रोसेसिंग। तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो होता है इट डिपेंड्स। कई कंट्रीज़ जल्दी कर देती हैं, जल्दी हो जाता है विद इन फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स, बट कई कंट्रीज़ में इट टेक्स मंथ्स ऑल्सो गाइज, ठीक है। बस गाइज देन यू रिसीव द वीज़ा। वंस यू रिसीव, तुम्हारे पास वीज़ा आ गया, कॉन्फर्मेशन आ गई, तो यू गेट द वीज़ा। सो वंस अप्रूव्ड यू विल गेट द वीज़ा stamped in your passport. So the moment it gets stamped, that means you are good to fly now. ठीक है। तो ये सब तुम्हारे प्री चेक्स होते हैं। दीज आर द प्री चेक्स बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी वीज़ा फॉर एनी कंट्री, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो द लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस ऑल्सो, जैसे कि बहुत कंट्रीज़ हैं, पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइज बहुत कंट्रीज़ जैसे कि मान लो USA हो गया। अब पॉपुलर डेस्टिनेशंस तुम्हारी बहुत होती हैं, राइट। USA में तुम्हारे F1 वीज़ा चाहिए होता है, विच इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। UK में तुम्हें, विच इज़ लंदन, यूनाइटेड किंगडम, इसमें तुम्हें Tier 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा होता है, जो नाम है वीज़ाज़ की मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कनाडा में इट्स स्टडी परमिट, इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ फंड्स एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सब तुम्हें चाहिए होगा। ऑस्ट्रेलिया में यू हैव अ स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, सब क्लास 500 वाला होता है, ठीक है। तुम सर्च करोगे सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा, तो तुम्हें वीज़ा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का। तो दिस रिक्वायर्स कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, कि तुम्हें कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है पहले। जर्मनी इज ऑल्सो गुड गाइज। सो जर्मनी में यू रिक्वायर स्टूडेंट वीज़ा, इट इज़ फॉर non-EU nationals. It requires the admission letter और proof of financial resources, ठीक है। Alright guys, so these are some countries. Also we have New Zealand as well. New Zealand is also a good country for the study, ठीक है। and this requires offer of the place and it requires a financial proof. तुम्हें दिखाना पड़ेगा तुम्हारा financial proof क्या है। ओके गाइज, तो ये तुम्हारा प्री चेक्स है। मतलब तुम अगर अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, तो तुम्हारे प्री चेक्स क्या क्या हैं, ये सब तुम्हारे होने चाहिए तुम्हारे पास, कि तुम ऐसे ऐसे अप्लाई करते हो। जैसे स्टेप वाइज फिल्ट्रेशन आई वुड से, जो कि ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है। नाउ कम्स द मेन पार्ट गाइज, विच इज़ हाउ टू डिसाइड विच कंट्री यू वांट टू गो टू, ठीक है। अब भाई तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तुम्हारे पास लंदन है, ठीक है। तुम्हें अब सोचना है कि भाई तुम कौन सी कंट्री में जाओ, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो कन्फ्यूजन भी हो ही जाती है ना। तो वो सोच के मैंने ये बनाए वाला जो कंटेंट है, तो मैंने ना स्टेप बाई सारा लिखा हुआ है इसमें, कि तुम क्या क्या करोगे, किस किस उसमें जाओगे, ठीक है। जो भी तुम्हारे चेक्स होते हैं सारे के सारे। तो फिर तुम क्या करोगे, पहला चेक्स, आई विल जस्ट शेयर द स्टेप्स, ठीक है। तुम्हें नोट करना है, नोट कर सकते हो। So first of all you have the factors which you consider when choosing a country for study, ठीक है। तुम कोई कंट्री चूज़ कर रहे हो तो उससे पहले तुम क्या क्या उसको evaluate क्या कैसे करोगे उस चीज़, उस कंट्री को for the study. So first of all guys, first step is the course and quality of education, कि उस कंट्री में तुम्हारा strong programs क्या है। मतलब you search for which countries are known for the strong programs. Guys, I have made a separate video. I'll be making a separate video for country wise student visa requirement, और country wise में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कितनी रेटिंग्स हैं, और कल्चर कैसा है, सेफ्टी है कि नहीं है, सब कुछ मैं आगे बनाऊंगा गाइज, डोंट वरी। I'll begin with the USA and UK, Australia, New Zealand, everything. I'll cover every country, most of the countries जो पॉपुलर हैं, ठीक है। दिस इज़ जस्ट द जेनरिक वीडियो जो तुम यू कैन कंसिडर बिफोर सर्चिंग फॉर द कंट्री दैट यू वांट टू गो टू। So first is course and quality of education, like which countries are known for strong programs in your field. जो भी आपका फील्ड है उसमें कौन सी कंट्रीज हैं वो फिल्टर आउट कर लो। चेक द यूनिवर्सिटी एंड रैंकिंग्स एंड स्पेसिफिक कोर्स रेप्यूटेशंस, किस कंट्री में कोई स्पेसिफिक कोर्स रेप्यूटेशन है कि नहीं है। आई एम सो सॉरी गाइज, अगर बीच बीच में मैं पॉज कर रहा हूँ तो मैं दिख रहा है ना थोड़े कट्स आ रहे हैं,
इट इज़ बिकॉज यार ऊपर वो कोई लेबर वर्क चल रहा है साथ वाले घर में, तो वहाँ पे ऊपर ना लेबर काम कर रही है। तो इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, तो धूप के टाइम पे वो काम कर रहे हैं। तो भी जो आवाज़ें आ रही है ना, तो बीच जैसे आवाज़ कोई आ रही है तो मैं बीच में पॉज कर रहा हूँ सो दैट द वीडियो डजंट गेट डिस्टर्ब्ड, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, थैंक यू। ठीक है, तो फिर वी वर ऑन दी ओके, सो फर्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द कोर्स एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। तो उसमें तुमने चेक कर ली यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स क्या क्या हैं, कौन से तुम्हारा कुछ स्पेसिफाइड फील्ड है, तो उस फील्ड में किस यूनिवर्सिटी के ज़्यादा नाम है, रेपुटेशन किस यूनिवर्सिटी की है। तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है इस इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है, रिव्यूज़ देखो, किसकी बेस्ट प्लेसमेंट होती है, चेक करो, उस हिसाब से कंट्री डिसाइड करनी है। ऐसा नहीं करना नहीं कि भाई अरे हाँ मेरा दोस्त वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया था मुझे वहीं जाना है। नो गाइस, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। Then comes the language. So now, if are you comfortable in their native language, in their primary language, तो you have to check that, ठीक है। So it depends upon कि उस country की primary language क्या है। If you're comfortable in English, you can go for Australia, US, UK, New Zealand, mostly countries में बोलते हैं। But let's say जापान में जापानीज़ सीखनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है, तो check for that। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज होती है, इंग्लिश भी होती है, तो जस्ट डू दिस प्री चेक्स। आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियोज़ कि सब रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, डोंट वरी। बट इफ़ यू वांट टू चेक फ्रॉम योर ओन यू कैन डू दैट एज वेल, लाइक अ प्री चेक। सो द क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ इज एम आई कंफर्टेबल इन दिस कंट्रीज प्राइमरी लैंग्वेज। Many countries offer programs in English, but sometimes they require proficiency in local language, ठीक है। Then comes the approximate INR amount is 1000 to 1200 rupees per hour. Almost guys मैक्सिमम कंट्रीज में इतना ही रहता है, ठीक है। तो 1000 से 1200 तुम्हें पर घंटे मिलेगा वहाँ पे। Then comes the most important part guys, this is very important, which is the tuition fee and the living cost, कि भाई कितनी है ट्यूशन फी, कितनी है वहाँ पे कोर्स की, और तुम्हारे लिविंग कॉस्ट कितनी है। ओके, सो यू गाइज चेक दिस, विच इज़ द you check the tuition fee, this is the most important part, and the living cost. So what you do is guys, you compare the total cost which is the tuition fee plus the accommodation plus the living cost, कि कितनी आ रही है, कितनी बैठ रही है, एंड उस हिसाब से गाइज यू गाइज डिसाइड कि कौन सी कंट्री तुम्हें सही बैठेगी, ठीक है। तो बहुत कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्यूशन फ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और लिविंग कॉस्ट बहुत कंट्रीज़ की हाई रहती है। यूजुअली यार तुम इंडिया से अगर जा रहे हो बाहर, लिविंग कॉस्ट होगी वहाँ पे, बिकॉज यू विल बी इनिशियली पेइंग फ्रॉम दी INR टू देयर करेंसी। तो वहाँ की जो लोकल करेंसी होती है, ऑब्वियसली दैट इज स्ट्रॉन्ग, राइट। इफ यू चूज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दीज पॉपुलर कंट्रीज, सो दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग करेंसी देन अस, राइट। तुम ज़्यादा पे करोगे उसमें, ठीक है। लाइक मैंने सुना है, मेरे एक फ्रेंड था ऑस्ट्रेलिया में, तो ही यूज्ड टू पे 60,000 रुपीज़ पर मंथ। 60,000 रुपीज़ पर मंथ मतलब कि तुम बेसिक स्टैंडर्ड्स अफोर्ड कर सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ रह रहे हो, अगर तुम यहाँ पे एक फ्लैट में रह रहे हो ना, सोसाइटी में या फ्लैट में रह रहे हो, तो वहाँ पे ये बेसिक लिविंग के लिए तुम्हारा 50-60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये महीने का एज अ बेसिक। तो सोच समझ के जाना, सेविंग्स करके जाना, ऐसे नहीं चल जाना है, ठीक है। इन सम कंट्रीज लाइक जर्मनी ऑफर फ्री और लो cost education as well, so just check for the sponsors and everything, the sponsorships. Now comes the next part guys, which is the scholarship and the financial aid. So you check availability for the scholarships for different countries, क्या क्या होती हैं क्या नहीं होती for international students. Previously I used to think कि भाई you know कि इस बंदे को, मेरे फ्रेंड को या इसको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, और वो पढ़ रही है डिस्काउंट में, कम पैसे दे के, या फ्री में पढ़ रही है। तो आई वाज टू थिंक यार कितने स्टूडियोज़ होंगे, होते हैं गाइस, बट स्कॉलरशिप मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग 50% एंड अबव। कई यूनिवर्सिटीज़ में ये भी होता है कि तुम लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में तुम 50% भी आ गए तुम्हारे कोर्स में, उसके ऊपर आ गए, तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। स्कॉलरशिप मतलब ये नहीं कि तुम्हें 90% या टॉप करना है, नहीं, 50% के ऊपर भी ला रहे हो तो भी तुम एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। ये भी चीज़ें होती हैं, डोंट कोट मी ऑन दिस कि नहीं शालीन ने बोला है कि नहीं उसमें ही होती है, यूके में सब जगह होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड्स एंड वेरीज अपॉन द यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ पे वेरी करता है, ठीक है।
देन कम्स द फिफ्थ चेक गाइज विच इज़ द वीज़ा प्रोसेस और जो वर्क राइट्स है वहाँ के क्या है। तुम जाके पढ़ाई करोगे वहाँ पे तो साथ साथ तुम्हें खर्चे भी निकालने हैं, राइट। तो तुम्हें लिविंग कॉस्ट निकालनी है अपनी, पढ़ाई से पार्ट टाइम भी करनी है, बहुत लोग करते हैं जो भी जाते हैं इंडिया से, तो दे वर्क पार्ट टाइम। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा रहने खाने का खर्चा निकल जाता है, बस पढ़ाई वढ़ाई का देना होता है। वो भी लोन लेके जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे उतार देते हैं लोग जाके वहाँ पे, ठीक है। मेरा फ्रेंड गया था ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे ही डिड वर्क इन ब्लू कॉलर जॉब्स विच इज़ बरिस्ता में काम किया उसने, उबर ईट्स में काम किया स्टार्टिंग के 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए। एंड ही टुक ऑफ तो पूरा खर्चा सारा का सारा, इसका जितना भी खर्चा ग्रेजुएशन का है, उसने बीटेक किया था वहाँ से। आई एम सो सॉरी गाइस, 4 साल की थी, तो 50 लाख का खर्चा था उसका टोटल, ऑलमोस्ट 50 लाख का खर्चा था INR में। उसने सारा कुछ से लोन उसने अपने ऊपर उठाया, उसके ऊपर सारा उसने सारा उतार दिया, घर से कुछ भी नहीं लिया उसने, ठीक है। तो इट इज़ ऑल मैनेजेबल गाइज। सो जस्ट चेक regarding the visa process कि how easy or tough it is to get a specific visa for that specific country before applying it। कॉलेज होगा तुम्हारा तो तुम्हें ये भी चेक करना है ना यार, तुम्हारी वो कंट्री अलाउ कर रही है, वो वीज़ा तुम्हें अलाउ कर रहा है टू वर्क पार्ट टाइम कि नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत कंट्रीज़ में ये भी होता है यार कि बंदे कर लेते हैं, वर्क आवर्स एक्सीड कर लेते हैं बाय डूइंग सम कैश इन जॉब्स। कैश इन जॉब्स क्या होती हैं, भाई मेरा घर है, मेरी गाड़ी धो दे, ये जो भी है, राइट। मेरी गाड़ी साफ, एज एन एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी साफ़ कर दी, मैंने तक को दी थी $5 $10 $10 उस चीज़ के, तो तुम्हारा वो कैश इन हो गया, राइट। तो वो तुम्हारा कहीं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आता क्योंकि तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में वो पैसा नहीं आ रहा, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, तुम कैश ले रहे हो उसके बदले, गेटिंग इट। तो वो सब भी होता है गाइस, जुगाड़ू काम इंडिया जैसे होते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो तुमने ये कर लिया है, अब तुम्हारा आता है पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज़। 6 चेक है तुम्हारा ये, ठीक है। 6 चेक तुम्हारा क्या होगा कि डज द कंट्री ऑफर वर्क परमिट और पाथवे टू द PR। PR इज़ परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर द ग्रेजुएशन। बहुत कंट्रीज़ करती हैं गाइस, तुम्हें वर्क परमिट्स ऑफर करती हैं ग्रेजुएशन के बाद, तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत कंट्रीज़ क्या होती हैं, वो तुम्हें PR के लिए भी एलिजिबल कर देती हैं उसके बाद, इफ़ यू गो फॉर द मास्टर्स या कुछ। तो बहुत चीज़ें होती हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मैं बताऊँगा आगे वाली वीडियोज़ में, डोंट वरी। Second check is what is the job market and internship opportunities like after you are done with the graduation in that specific country or the university, ठीक है। फिर तुम्हारा 7 चेक आएगा गाइज विच इज़ द कल्चर, वहाँ का कल्चर चेक करो, द कल्चर फिट एंड द लाइफ स्टाइल विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज। मतलब तुम जाके एकदम से नए लाइफ स्टाइल में एडजस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनिशियली, थोड़ा नहीं बहुत हो जाता है। So just check, do you prefer a big city or a smaller town, or check the climate also, climate, the social environment, safety and lifestyle, because it all matters guys। तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, जो तुम्हारी लाइफ यहाँ होती है वो सेम तुम्हारी लाइफ वहाँ पे हो सकती है, बट डिफरेंट भी हो सकती है, राइट, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग होता है, ओके। Now the next check is your distance from home and travel। ये भी तुम्हें चेक करना है that how far is the college from your home where you're staying। Okay, before that make sure to check the distance from the country। जैसे मान लो तुम इंडिया से जा रहे हो तो चेक भी तुम्हारे इंडिया से वो वाली कंट्री कितनी दूर पड़ेगी। लेट्स से इफ यू मिस योर पेरेंट्स एंड इफ यू वांट टू कम बैक टू इंडिया टू मीट योर पेरेंट्स, इफ योर पेरेंट्स वांट टू कम टू यू देयर मीट यू, राइट, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स या कैसे भी कभी भी, बिकॉज यू नो इनिशियली जब तुम घर छोड़ोगे गाइस, तो जो स्टार्टिंग में जैसे पहली बार किसी ने अगर घर छोड़ा है ना तो आसान प्रोसेस नहीं होता वो, क्योंकि मैंने जब छोड़ा था तो मैं रोया था, नॉट बीइंग, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं तुमसे, मैं रोया था। व्हेन आई वेंट टू JTBS की ट्रेनिंग इन बॉम्बे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ पे बहुत बेकार सीन था भाई, मतलब इनिशियली भाई वो तो मेरे फ्रेंड ने सपोर्ट किया मुझे, तो मैंने कहा मैं तो वापस जा रहा हूँ, यू नो यू गेट होम सिक, राइट, यू गेट होम सिक, यू मिस योर पेरेंट्स, यू मिस योर फैमिली, राइट। जहाँ तुम बचपन से रहे हो, तुमसे वो छोड़ के तुम जा रहे हो किसी नए देश जहाँ तुम किसी को नहीं जानते, तो इट्स अ होल शिफ्ट, राइट।
तो चेक कितना दूर है तुम्हारी वो वाली कंट्री से अब हमारी कंट्री इंडिया कितना दूर है, यू वांट टू कम बैक, ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या हैं, फ़्लाइट चार्जेस क्या हैं, सब कुछ, वेदर यू कैन अफोर्ड इट, नॉट अफोर्ड इट, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, ये सब चेक्स पहले करने होते हैं। वहाँ जाके नहीं तुम कोर्स में चले गए, वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी, यार मन नहीं कर रहा मम्मी, वापस आना है मुझे, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। नहीं भाई, तो बहुत लोग करते हैं, पैसे भी बर्बाद कर देते हैं माँ बाप के। क्यों करने हैं बर्बाद पैसे माँ बाप के फालतू में, मेहनत के पैसे हैं गाइस, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। एंड द फाइनल चेक यू डू इज द एल्यूमिनाई एंड द नेटवर्किंग, so which is, does the university have a strong global alumni network which will help you for the placements, which can help with the as I said placements और द फ्यूचर करियर तुम्हारा क्या होगा आगे जाके। लेट्स से तुम्हें मास्टर्स करना है, कुछ और करना है, तुम्हें रिसर्च करना है, तो जस्ट check this is very important guys, and after that only you apply for the visa, okay. After this guys, I have also made a note for just to help you guys to make a note regarding the country, मतलब मैंने पूरा सेग्रीगेट किया है बैठ के कि भाई यूएसए में ये है, उसमें ये है, ठीक है। I'll tell you. So see guys, this video is might be long. This might sound you boring as well, but guys, this is the everlasting content. This is not a masala content I'm making. I'm not making this for the masala. I'm not making this to trend. I'm not making this for the maximum views. That is not my intent. My intent here is to help you guys. My intent here is to help those parents, those Indian parents who are really concerned for their kid getting outside India, right? My intent is to help those students not to take wrong decisions or wrong choices based on impulses or their friends' choices. Don't do that guys, ठीक है। तो इसलिए भाई जाने से पहले ये सब चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मेक श्योर ये सब चेक्स करने हैं। Alright, so guys, let's begin with the country-wise. I've segregated the workers. So if you want to go outside and study and also work part-time, this information will help you guys. So let's begin with the country USA, which is America. Language is the English, जो primary language है वहाँ की। Cost of studying and living वहाँ का high है guys. It comes under the category high. Work rights, it's 20 hours per week, ठीक है। यूजली सब कंट्रीज का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। US is popular for the courses like the engineering courses, the business courses and the research courses. If you want to research, USA is good. You get 20 hours per week as a work rights, which is 20 घंटे तुम एक वीक में काम कर सकते हो। This also you have the OPT available. What is OPT? OPT is the opt-in, which means कि let's say you're working in a company and the employer asks you that, you know what, I'm giving you healthcare, I want to give you extra healthcare, do you want to take it? Now it's your choice if you want to say yes or no. If you say yes, that I'm going to take it, you are eligible for the extra healthcare as well. If you say no, you're not eligible for that. That is what it means by opt-in, ठीक है। वो वर्क राइट्स में आता है, कभी भी तुम पढ़ोगे OPT लिखा होता है। Then come guys Canada. Canada में language is English, most spoken language is English, French. Cost of living, it comes under the category as moderate, ठीक है। Work rights same, 20 hours per week. You get post-study work permit as well in Canada. This is popularly known for the IT industry, hospitality industry and the healthcare, ठीक है। Then comes UK, United Kingdom, London. Language is English. Cost of study and living is high. 20 hours per week, work permit. And it gives you a graduate route. I'll tell you what that is. ठीक है, आगे. It is popular for law field, business field and arts. ठीक है, ये specialty है. Then comes guys Australia. ऑस्ट्रेलिया इज़ मेरा फेवरेट, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में गाइज लैंग्वेज इज इंग्लिश। द स्टडी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एंड लिविंग इज मॉडरेट टू हाई।
सस्ता भी मिल जाएगा, महंगा मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन यू गाइस. वर्क राइट्स इज 20 hours per week and post study work visa मिलता है. Now it's popular for the engineering and the environmental sciences, these courses. Okay. Then comes Germany. Germany में language as you know English and German. ठीक है. Now Germany में थोड़ा सस्ता पड़ता है guys. The cost of living and the study is low to free. फ्री भी होता है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो वहाँ पे लो के अंदर आता है वो. वर्क राइट्स इज 20 hours per week, 20 hours per week एंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है वहाँ पे. पॉपुलर फॉर द इंजीनियरिंग एंड द साइंसेस. देन कम्स न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड कंट्री गाइस, बहुत सही है. न्यूजीलैंड अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो रहा तो गो फॉर न्यूजीलैंड, बिकॉज इफ़ यू गेट न्यूजीलैंड का वीज़ा तो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया बिकम्स ईजी, गेटिंग अ PR फॉर ऑस्ट्रेलिया बिकम्स ईजी वंस यू आर इन द न्यूजीलैंड. Language is English. The cost and study and living is moderate. And same guys, 20 hours per week तुम्हारा work permit है and post study work visa है वहाँ पे. It's popular for the agricultural courses, tourism, New Zealand, and for IT courses. ठीक है. Now let's go for hourly pays country wise for students. Hourly pays तो important है ही guys. All right. So let's begin with. So I'll tell you the country first, then the local currency वहाँ की जो होती है उस पर कितना पे तुम्हें मिल रहा है hourly, and then the approximate Indian rupees INR amount convert करके कितना है approx. तो UK में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में the currency is pound, which is GBP, and तुम्हें मिलता है 10 से 12 पाउंड पर घंटे का. ठीक है. तो approximate INR amount is 1000 to 1200 rupees per hour. Almost guys मैक्सिमम कंट्रीज में इतना ही रहता है. ठीक है. तो 1000 से 1200 तुम्हें पर घंटे मिलेगा वहाँ पे. Then comes Germany. यूरोज़ होता है वहाँ पे, which is 10 to 14 euros per hour, and तुम्हारा INR में it's 900 rupees to 1200 rupees per hour. ठीक है, जर्मनी में. Then comes Canada. Canada में guys you get 15 to 20 dollars, the Canadian dollars per hour, which I convert to INR is 900 rupees to 1200 rupees, 900 से 1200 रुपये per hour. Then comes Australia. Australia में you get 20 to 30 Australian dollars per hour, which is equivalent to 1000 to 1600 rupees per hour. 1000 से 1600 रुपये पर घंटे का इनकम है वहाँ पे. आई एम ओनली रेफरिंग टू द स्टूडेंट जो जाते हैं वहाँ पे पार्ट टाइम करने के लिए, पार्ट टाइम के लिए जो कर रहे हैं वहाँ पे उसका पे है. ठीक है, ज़्यादा भी होता है बट ये इनिशियली बेसिक पे इतना जाता है. देन इज़ USA में $12 to 23 US पर आवर, विच इज़ 1000 रुपीज़ से लेके 1900 रुपीज़ पर आवर. 1000 रुपये से 1900 रुपये तक पर आवर का पर घंटे तुम कमा सकते हो पार्ट टाइम करके. अब तुम्हारा इसमें क्या होता है ना गाइस, लिविंग एक्सपेंस निकल जाता है. तो फिर अगर पेरेंट्स ने पैसे अर्न किए हैं ना मेहनत से, तो भाई वो वेस्ट नहीं होते, वो थोड़े से सही जगह लगते हैं. कि तुम सिर्फ ट्यूशन फी में तुम उनके पैसे यूज़ कर रहे हो, या तुम लोन लेके जा रहे हो, सिर्फ ट्यूशन फी का तुम दे रहे हो, तुम्हारा लिविंग का तो निकल रहा है, तुम पार्ट टाइम कर रहे हो. तो देखो इनिशियली तो करना पड़ेगा गाइस, इनिशियली स्ट्रगल होता है. ठीक है, हर फील्ड में होता है. वहाँ पे तुम स्ट्रगल कर लोगे, 4-5 साल काम कर लोगे, तो तुम अच्छा अमाउंट कमा के इंडिया आ सकते हो वापस. वही तुम इंडिया में 20 साल लगा दोगे कमाने में. समझ रहे हो. तो ये तो पर आवर हो गया. अब मैं तुम्हें मंथली का बताता हूँ कि कन्वर्टिंग ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन टू मंथली पे तुम कितना कमा सकते हो पार्ट टाइम से. तो यूके में तुम्हारा 900 से 1200 पाउंड पर मंथ का इनकम आ जाती है एवरेज. 900 to 1200 pounds per month in UK, which is equivalent to 96,000 Indian rupees to 1,30,000 Indian rupees पर मंथ. तुम पार्ट टाइम से इतने कमा रहे हो वहाँ पे. ठीक है, इतने कमा सकते हो कॉलेज के साथ साथ काम करके. जर्मनी यू गेट 800 to 1600 euros per month, which is 72,000 rupees to 1,44,000 rupees. Canada, you get 1,200 Canadian dollars to 2,400 Canadian dollars, which is equivalent to 73,000 rupees to 1,46,000 rupees.
Then is Australia. So in Australia, you get 900 to 1600 Australian dollars per month, which is equivalent to 48,000 rupees to 86,000 rupees per month. ठीक है. Then is USA. USA get $480 to $920 per month, which is equivalent to 39,000 rupees to 76,000 rupees इंडियन करेंसी में पर मंथ. तो तुम ये इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर लो, ये सब तुम्हारी मंथली इनकम है वहाँ की. ठीक है. डिसाइड बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री चूज़ करनी है, एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई फॉर द वीज़ा. ठीक है. आई ऑल्सो शेयर सम इम्पॉर्टेंट लिंक्स और सम वीज़ा के जो ऑफिस होते हैं. तुम्हें ये सब इतना झोल में नहीं पड़ना है, इतनी दिक्कत नहीं लेनी है. तुम्हें डायरेक्टली किसी वीज़ा ऑफिसर को फ़ोन करना है और जस्ट काम कराना है, अपने पैसे देने हैं, काम कराने, ख़त्म. ठीक है. सब कुछ वीज़ा ऑफिस करेगा, मतलब जो एजेंसीज होती हैं. तो उस एजेंसी का भी मैं लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है. तो मैं नंबर भी डाल सकता हूँ वहाँ का. तुम मुझे DM कर दो, कुछ कर लो. आई शेयर यू द नंबर एज वेल. लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, यू कैन विजिट द लिंक. और जो नंबर एजेंसी का वो भी दे दूँगा तुम्हें चाहिए तो, ताकि तुम फिर एक फ़ोन कॉल करो. सारा काम ही तुम्हारी एजेंसी करेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना इसमें. एंड बस तुम अपना आराम से प्लेन में बैठोगे, वहाँ पे पहुँच जाओगे. ठीक है. चलो कूल है गाइस. आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो. इट इज़ अबाउट द मास्टर्स का भी बनाऊँगा तुम्हारे लिए एक मैं, और एक मैं बनाऊँगा आइल्स का. ठीक है. उससे पहले मैं बना रहा हूँ कंट्री वाइज यूनिवर्सिटी का सारा सेग्रीगेशन, कौन सी सही यूनिवर्सिटी है, एंड ऑल द चेक्स दैट यू डू. लेट्स से यू चूज़ UK. तो UK में जाने से पहले भाई तुम्हें क्या क्या चेक्स करने हैं कि सही है कि नहीं है. तुम USA चूज़ करोगे, क्या क्या चेक्स तुम्हें करने चाहिए. दिस इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इंडियन पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूँ वाली वीडियो. ठीक है. इफ़ यू लाइक दिस, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम.